Very good morning, children. Just yesterday we have to study regarding the cash book, triple column cash book, three column cash book, three column cash book, three column cash book. The line drawn in three columns. Cash, bank and discount columns. Just this one is the column of date, particulars, voucher number, ledger folio number, discount, cash and bank, date, particulars, voucher number, ledger folio number, discount, cash and bank. These are the columns drawn in triple column cash book. This one is the receipt debit and this one is the payment credit. Payments, you can write top payments and here you can write receipt. With the help of question number 12 given in your book, how the transactions will be recorded or enter in three column cash book, that is the discount receiving or allowing to the customers or receiving from the suppliers. You have to enter such amount in discount column only. No need of balancing the discount column, only balancing the cash and bank column. In question number 12, now this one is the question through the book. Balance of cash in hand 12,000, overdraft at bank given. On June 1st, just you can write it over here, June 1st, to balance in cash column, my dear, because this one is the debit balance given 12,000. This way you can record. And overdraft in the credit column, it will be recorded. June 1st, by balance in bank column, by balance in bank column 1,500. Just you have to enter in bank column 1,500. The next, deposited into bank 10,000 rupees. Just you have to deposit the sum of amount 10,000. You know it very well. This will be contra entry क्योंकि आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो तो बैंक कॉलम में जमा कर दीजिए. आप 2 जून को कैश बैंक कॉलम में आपने जमा कर दिया. कितना? 10,000. On the particular day, on the same day, sold goods for cash 28,000 and paid half the proceeds into bank. आपने 28,000 का सामान नगद बेचा
और तुरंत उसमें से हाफ जो है बैंक भेज दिया, फिर जमा कर दिया उसी दिन। तो आप पहले लिखेंगे टू सेल्स, कैश कॉलम में टू सेल्स, पूरी नगद बिक्री कितने की है 28,000, और उसी दिन उसे बैंक में भी जमा कर रहे हैं कितना, हाफ ऑफ द अमाउंट दैट इज गिवन, पेड हाफ द प्रोसीड इनटू बैंक टू कैश, in bank column 14,000, और 10,000 आपने 2 को 14, 10 आप कौन एंट्री करेंगे 2 जून को बाई बैंक, उसी दिन टोटल अमाउंट 10,000 प्लस 14,000 इज बाई बैंक कॉन्ट्रा 10,000। मैंने सेपरेट कर दिया, चाहता तो मैं टोटल करके आपको एक साथ कर देता, फिर बाई बैंक 14,000 आपने कैश से निकाला और बैंक में जमा कर दिया। 3 जून परचेज गुड्स फॉर ₹7,000 फ्रॉम मनोज एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। आप 3 जून को जो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, द ट्रांजैक्शन इज बीइंग मेड, दैट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड इट will not be recorded in the cash book because this one is the credit transactions, उधार लेन देन कर रहे हैं बेटा। receipt of money order from Suresh ₹500, money order from Suresh ₹500, कैश आप रिसीव कर रहे हैं तो टू सुरेश और डेट 5 to Suresh in cash column 500 rupees, just you have received as money order. Next, received 2,800 from Govind, paid 1,000 into बैंक। आपने गोविंद से 2,800 रुपए प्राप्त किया, जिसमें से 1,000 रुपए बैंक में जमा कर दिया। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 8 को टू गोविंद, कितना 2,800, उसी दिन या फिर कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उसी दिन बैंक भेज रहे हैं तो 2,800 में से 1,800 आपने कैश कॉलम में डाला और 1,000 आपने बैंक कॉलम में डाला। मतलब उसी दिन आप बैंक भेज दे रहे हैं, पैसा जमा कर दे रहे हैं। को रिसीव्ड अ चेक फॉर ₹7,600 फ्रॉम सुभाष इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹8,000 ड्यू फ्रॉम हिम। नाउ लिसन इट केयरफुली, क्योंकि आप चेक रिसीव कर रहे हैं और इसे आप उसी दिन बैंक नहीं भेजा जा रहा है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जर्नल प्रॉपर का है, चेक ऑन हैंड अकाउंट डेबिट टू, जिससे आपने चेक प्राप्त किया है टू सुभाष। दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अभी कैश ट्रांजैक्शन चेक का हुआ नहीं है। अगर तो चेक को उसी दिन आप बैंक भेज दिए होते तो आपका ये रिकॉर्ड कैश बुक में करते।
12 को settle the account of Mahmood and company by payment of 6,600, half cash and half by check. Now 12 पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट कॉलम में बाय मनोज एंड कंपनी, बाय मनोज एंड कंपनी। हाफ अमाउंट कैश से पेमेंट कर रहे हैं, कितना है 6,600 है, तो हाफ ऑफ कैश कॉलम में 3,300 and 3,300 in bank column, 6,600। आधा अमाउंट आप कैश, आधा चेक के द्वारा पे कर रहे हैं, इसलिए इंटर होगा पेमेंट कॉलम। चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नाउ जस्ट दिस वे यू कैन राइट 13 टू चेक ऑन हैंड। तो आपने जर्नल प्रॉपर में लिखा हुआ है चेक ऑन हैंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सुबह से आपने कितने का चेक प्राप्त किया था 7,600 बैंक कॉलम में आपने इंटर कर दिया। फुल सेटलमेंट कितने का था आपका 8,000 का था, तो आपने 400 रुपए छूट प्राप्त किया हुआ है, उस दिन बैंक में नहीं भेजा है। जर्नल प्रॉपर में आपने डिस्काउंट अलाउड की एंट्री कर चुके हैं। पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक, आपने मशीनरी पेमेंट किया खरीदा है, कितने का 15 को बाय मशीनरी, जस्ट यू हैव परचेज द मशीनरी। बेटा मशीनरी आपने ये किया और चेक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक कॉलम में 20,000। 15 को हो गया। 16 को पेड वेजेस फॉर द इरेक्शन ऑफ एबल मशीनरी। सो वेजेस इरेक्शन के लिए है, इसलिए मशीनरी अकाउंट आपका मशीनरी अकाउंट में ही ये प्लस हो जाएगा। 16 को भी आप इसे वेजेस अकाउंट में लिख करके बाय मशीनरी लिखेंगे, बाय मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीन को इंस्टॉल करवाने में आपने वो पैसा दिया है। ये कितना 1,000। कैश कॉलम में आप डालेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि मशीनरी आपने 20 तारीख को परचेज किया, 15 तारीख को 20,000 का और 16 तारीख को उसको इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो मशीन की लागत हुई, ना कि वेजेज हुआ। तो मशीन की लागत आप बाय मशीनरी करके आप लिखेंगे 1,000 कैश कॉलम। 17 चेक issued for 6,000 in favor of Sachdeva and company for purchase of furniture. So you can write over here buy furniture. 17 buy फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट, और चेक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं आप 6,000। जस्ट यू कैन एंटर हियर 6,000। 17 को है ये। अब 20 को देखें जरा सा। परचेज गुड्स फ्रॉम कल्पना गारमेंट्स फॉर 10,500 ऑन क्रेडिट।
आप क्रेडिट में खरीद रहे हैं, ठीक है, तो इसकी एंट्री जो होगी वो तो होगी नहीं। आप रिसीव्ड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर रुपीज 4,800 फ्रॉम दामोदर एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 5,000 ड्यू फ्रॉम देम, सेंड द ड्राफ्ट टू बैंक। उसी दिन ड्राफ्ट आप किससे रिसीव कर रहे हैं? दामोदर एंड कंपनी से। तो यहां पर आ जाएंगे 20 को टू दामोदर एंड कंपनी बेटा रिसीप्ट कॉलम में, और आप बैंक कॉलम में डालेंगे क्योंकि ड्राफ्ट को तुरंत आप बैंक भेज दे रहे हैं। तो बैंक कॉलम में कितना अमाउंट है? 4,800 in bank column recorded, and whatever the discount allowed 200 रुपीज। देखो यहाँ पर ये डिस्काउंट कॉलम में आपने 200। बैंक issued a draft for 10,000 in favor of Kalpana Garments on our request. Bank charged 25 for issuing the draft. Account of Kalpana Garment was fully settled. Kalpana Garment से आपने खरीदा था ना 10,500 का, और 10,000 का आप क्या कर रहे हैं? चेक इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक ड्राफ्ट आप भेज रहे हैं कि किस तारीख को है? 24 को। बाई कल्पना गवर्नमेंट। बैंक ड्राफ्ट आपके रिक्वेस्ट पर बैंक कर रहा है, तो बैंक के थ्रू कितना हुआ? कितना अमाउंट है बेटा? 10,000। बाय बैंक चार्जेस, बैंक चार्ज भी लगा है, उस पर बैंक चार्जेस 25 रुपीज का बैंक चार्जेस है। 25 एंड कल्पना गारमेंट से आपने 10,500 का फुल सेटलमेंट हो रहा है अकाउंट का, फुल सेटलमेंट अकाउंट का हो रहा है बेटा। 10,500 का सामान आपने कल्पना गारमेंट से उधार खरीदा था, आप उसे पेमेंट कर रहे हैं चेक के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से। तो क्या करेंगे आप? उस में 500 का आपको क्या प्राप्त हो रहा है? छूट। अब यहां पर आप लिख देंगे 500 डिस्काउंट का। Because of that, this one given fully settled. Due from bank for petty cash. By petty cash entered in bank column only. Just this one is आप 500 रुपए फुटकर खर्च का पेमेंट कर रहे हैं और बैंक के माध्यम से, तो 26 को बाय पेटी कैश। पेटी कैश का मतलब हो गया खुदरा खर्च 500 रुपए का। आपका कितने का हो रहा है? 100 रुपीज का। 100 रुपीज का आपने पेटी कैश बैंक के माध्यम से खर्च किया, खुदरा खर्च। पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी आप चेक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं 28। तो आप दिस विल बी रिकॉर्डेड इन पेमेंट कॉलम बाय सैलरी इन बैंक कॉलम, बाय सैलरी इन बैंक कॉलम 6
6,000 my dear. Bank charges 50 and interest rupees 1,620 charged by the bank on 30. On 30 by bank charges 50 rupees and by interest charged by bank, by interest charged by bank. Charged by bank 1,620. These are the transactions which have been recorded. Now one more information given. Deposited into bank the entire balance after retaining rupees 4,000 at office. जो कैश बैलेंस आएगा बेटा आपका, कैश डालूंगा तो आप वो पैसा 30 तारीख को 4,000 रुपए रोक करके कैश बैलेंस में आप बाकी पैसा क्या करेंगे, बैंक में जमा कर देंगे। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट कर लेते हैं। टोटल कॉलम ऑफ कैश 28 12 40 और उसके बाद 2,300, ये हो गया 42,300। ये 18 5 2300 हो गया और 40 2300, ये हो गया आपका बेटा 42,000 कैश कॉलम का। आपके पास कुल कैश कितना है, 28 12 40 23 42,300 रुपया। ठीक, 42,300 है और पेमेंट इधर आपने किया हुआ है, देख लें कैश कॉलम में 10,000 और 14,000, 24 14 10 24 3 27 28,300 का। 28,300 42,300 में से माइनस करेंगे